Hello everyone. So in the part of online class, this is the 8th part of the chapter life process of 10th class, and today we'll talk about the small intestine, liver and pancreas. So in the last video we are talking about small intestine. So you have learned few facts about small intestine, like it is 6 meter long. Then we have talked about that this is divided into three parts: duodenum, jejunum, ileum, where duodenum is the last site of digestion, and all the food, complex food, is going to break down into the simplest form, which is absorbed by our body in this small intestine. Okay, and apart from that, we have talked about that the small intestine have intestinal juices, and that intestinal juices have kind of enzyme which are involved in the digestion of food. But along with that, some enzymes and some factors which are essential for the digestion of food is also given by two other organ which is connected to the small intestine, duodenum part. So this is the duodenum, and we have connected in the first diagram of this digestive system that this leaf like structure is pancreas, and this pancreas also secrete. So if we talk about the components of small intestine. So this small intestine having what? The first is intestinal juices which is secreted by intestine itself. Then the second is bile juice, and this bile juice is secreted by liver. So this is the liver, and this liver secrete bile juice we store in this pouch like structure, and this pouch is called gallbladder. So when we are talking about liver, we must know that this liver secretes the secretion called bile juice, and this bile juice stored in pouch like structure, and this pouch like structure is called gallbladder. Fine. What is the role of this bile juice now? So if we talk about the role of bile juice, so this bile juice is involved in emulsification of fat. And what is emulsification of fat? अब इसे समझिए. So यहाँ पर फैट जो होते हैं वो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं. फाइन. इस फैट को आप डायरेक्ट अगर लाइपेज देंगे तो वो इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा. सो हम क्या करते हैं, इस फैट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, और वही तोड़ने का काम करते हैं यहाँ पर, इस फैट पर एक्ट करते हैं बाइल सॉल्ट, and these bile salts are present inside this bile juice. So bile juice are having actually this bile salt, and these bile salt divide this fat into small globule होते दाने जैसे स्ट्रक्चर, और इस स्मॉल ग्लोब्यूल के अराउंड आपका ये बाइल सॉल्ट इसके अराउंड इकट्ठा हो जाता है लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द फैट. ओके, व्हेन दिस fat is covered with bile salt, at that time we are calling it that it is a emulsified fat. अब ये फैट के छोटे ग्लोब्यूल्स जो है इस पर एंजाइम इजीली वर्क कर सकते हैं. नाउ द लाइपेज एंजाइम वर्क ओवर देम, एंड लाइपेज इस पर वर्क कर इसे ब्रेक करेंगे. लाइपेज act on them and break them into fatty acid plus glycerol. Okay, so this is the overall role of bile juice. Okay, next here pancreas are also present. So the third component
third component of small intestine is pancreatic juice. Means the small intestine have three components. The first one is intestinal juice, second is bile juice, and third is C is pancreatic juice. You can also remember one thing, that bile juice, it do not have any enzyme, no enzyme is present in bile juice. तो ये डाइजेशन में फूड को तोड़ नहीं रहा है, ये सिर्फ उसके अराउंड सॉल्ट का डिपोजिशन करता है, सिर्फ फैट पर एक्ट करता है, ठीक है। और फैट को भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। डाइजेस्ट हम टर्म बात करते हैं जहाँ एंजाइम वर्क कर रहे हो, तो ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, डिग्रेड कर रहा है फैट को। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट pancreatic juice. What pancreatic juice is doing here? Pancreatic juices, C part, fine. So pancreatic juices are actually providing alkaline medium। जैसे स्टमक के अंदर क्या था, एसिडिक मीडियम, वैसे ही पेनक्रियास के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम। एंड दिस एल्कलाइन मीडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम एक्टिवेशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टमक के एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं एसिडिक मीडियम में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं एल्कलाइन मीडियम के अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, फाइन। सो यहाँ पर बेसिक मीडियम एंड यहाँ पर एक तो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करा फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, एंड ऑल्सो इट हैव सर्टेन एंजाइम फॉर फूड डाइजेशन। तो वो हम बात कर चुके हैं। आपको बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो एंजाइम के नाम रखने हैं याद। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन, सेकेंड इज लाइपेज फॉर फैट डिग्रेडेशन। ओके, सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द डाइजेशन। हमने अभी बात कर लिया है कि फूड का डाइजेशन खत्म हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही पार्ट है जहां पर आपका सेकेंड प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो यहाँ पर आपका 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द साइट, last site of digestion। तो last site of digestion that is also small intestine, and if you have to specify the particular region then that is duodenum। small intestine के duodenum तक होगा क्या, digestion। and if the question is asked that what is the region where the absorption of food take place, तो that is also the small intestine, क्योंकि small intestine का जो next region है that is jejunum and ileum, they are involved in the absorption of food, fine। so here the adaptation of small intestine, what are the adaptation of small intestine for food absorption, fine। So here if we talk about the adaptation of small intestine for food absorption, so the first adaptation is that the small intestine have finger-like projections to increase the surface area। Small intestine have finger-like projection to increase the surface area of absorption। अब वो क्या है ये भी बात कर लेते हैं। सी, अगर आपका कोई एक प्लेन सरफेस है लाइक दिस, तो यहाँ पर आपका सरफेस एरिया एक इसको कंपेयर कर रहे हैं, और एक सरफेस है जहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा,
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ से आपका ब्लड वेसल्स इस एरिया से कनेक्टेड होगी और जितना भी न्यूट्रिएंट है वो इस ब्लड वेसल में चले जाएगा। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा ब्लड वेसल, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसफर सेक्शन काटे तो वो इस तरह की दिखती है ये। अब यहाँ पर भी आपकी ब्लड वेसल अटैच हो सकती है, यहाँ पर भी आपकी ब्लड वेसल अटैच हो सकती है, यहाँ पर भी आपकी ब्लड वेसल अटैच हो सकती है। तो कंपेयर टू दिस एरिया, इफ यू आर कंपेयरिंग दिस एरिया हैविंग मोर सरफेस एरिया, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विलाई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को वी आर कॉलिंग देम villi, and this villi are increasing the surface area for absorption। क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई जा रही है, यानी कि हर पार्ट में ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स जाती हैं। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी, और जितने ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतना ही यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका ब्लड वेसल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सारी जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। दूसरा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी अगर हम देखें तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो दो रीजन कि ये अच्छा ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए। द सेकेंड रीजन इज दैट इट इज हाईली कॉइल्ड, एंड अगर हाईली कॉइल्ड है, अगेन कोई आपका ऑर्गन होता है ये, अब वही ऑर्गन आपका ये है, इस तरह की कॉइलिंग है, एरिया उतना ही ले रहा है। तो जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी, हमने इसी तरह ड्रॉ किया स्मॉल इंटेस्टाइन, जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया। तो हाईली कॉइल्ड होगा तो उतना ही सरफेस एरिया क्या? ज्यादा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना ही क्या होगा? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, है ना। सो यहाँ पर आपका अडेप्टेशन, क्या अडेप्टेशन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है या इसे बेटर ऑर्गन बनाती है फॉर एब्जॉर्प्शन? तो दो रीजन है, एक तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड विलाई, और दूसरा कि स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है जो इसे क्या करती है? इसे आपका हाईली कॉइल्ड होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, दोनों ही फैक्टर, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। फाइन। एंड आफ्टर दिस द स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको एक छोटा सा पॉइंट सेम आपका है, लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन इज also the muscular structure. So पहला point, it is also muscular structure, and as we have talked earlier that it is divided into three parts: cecum, colon and rectum. So it is divided into three parts: cecum, colon and rectum. Rectum is the region where the storage of अनडाइजेस्टेड फूड, अब सारा फूड में से अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया जाए, सारे फूड में से हमने न्यूट्रिएंट निकाल लिया तो क्या बचा? वेस्ट बचा, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो हमारी बॉडी के अंदर आ गया। तो इंटेस्टाइन में अब क्या है? वेस्ट, और वो वेस्ट इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोरेज होता है उस अनडाइजेस्टेड फूड का, कहाँ पर? रेक्टम के अंदर। अगर हम बात करें सिक्कम की, तो सिक्कम में हमने बात की थी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रोजेक्शन, जिसे हमने कहा अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स को बच्चा हम कहते हैं कि ये अपेंडिक्स क्या है? दिस इज एक्चुअली अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एंड व्हाट डज इट मीन बाय वेस्टिजियल ऑर्गन? तो वेस्टिजियल ऑर्गन आपके वो ऑर्गन है विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट दे आर नॉन फंक्शनल। ये क्या है? नॉन
फंक्शनल है, कि आपकी बॉडी में तो प्रेजेंट है बट ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि ये फिर हमारी बॉडी में प्रेजेंट क्यों, क्योंकि जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हम मानते हैं इवोल्यूशन के टाइम पर अगर कोई ऑर्गन बना है तो वो इसीलिए ही बना है, इवोल्यूशन है कि वक्त के साथ अगर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस अच्छे के लिए आ रहे हैं, यानी उसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो ये माना जाता है कि जो अपेंडिक्स होती थी पहले इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम फिल्ड होते थे, हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो फूड कुक नहीं करते थे तो वो कच्चा ही मांस खाते थे, और उस कच्चे मांस को डाइजेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो उस टाइम पर जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन होता था वो भी डाइजेशन में हेल्प करता था, और ये अपेंडिक्स जो है वो वहां पर फिल्ड होता था, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते थे। बट क्योंकि अब हम फूड कुक करके खाने लगे तो धीरे धीरे उन एंजाइम्स का रोल आपकी बॉडी से रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड दैट इज द रीजन कि अब आपकी बॉडी में अपेंडिक्स प्रेजेंट तो है बट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गन जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो बट कोई फंक्शन नहीं कर रहे हो, दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, एंड एक पॉइंट ऑफ फंक्शन के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि मेजर फंक्शन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है मेजर वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन ही चल रहा है और ज्यादातर एब्जॉर्प्शन किसका, वाटर का। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज योर रेक्टम, तो यू कैन राइट इट बाय इटसेल्फ दैट रेक्टम इज अ point from where we expel the undigested food out of our body. Okay, so your digestive system, or we can say the nutrition topic in the life process, the first process is almost done. I'm giving you a homework, or you can say your assignment. आपको वो पढ़ना है if you have NCERT, otherwise I'll share the page also, एंड आपको एक बार रीड आउट करना है, एंड इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, दैट इज डेंटल कैरीज। ठीक है, तो आपको डेंटल कैरीज की आपके टूथ डिके जो होता है, टीथ जो खराब होते हैं वो टूथ डिके किस वजह से हो रहा है, दैट इज डेंटल कैरीज। तो हम आपको वो देंगे, फोटो दूंगी मैं आपको और आपको वो रीड आउट करना। ओके, सो दिस इज ऑल वजह से हो रहा है, दैट इज डेंटल कैरीज। तो हम आपको वो देंगे, फोटो दूंगी मैं आपको और आपको वो रीड आउट करना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।